Today we are going to talk about Article 17 and Article 18, which deals with abolition of untouchability and also abolition of titles. So today we will be dealing with these two articles. यहाँ एक बहुत फेमस एक्टर की मैंने फोटो लगाई है. साउथ इंडियन एक्टर है ब्रह्मानंदम. आपने ना बहुत सारी मूवीज में इनको देखा होगा साउथ की. सो इनका एक केस भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. आई हैव शेयर्ड द लिंक बिफोर. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. आज का सेशन बहुत छोटा होगा, ज्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही आर्टिकल छोटे छोटे हैं. ओके, मूविंग फर्दर. आर्टिकल 17 कवर करेंगे हम. वी विल बी कवरिंग एक्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी. दैट व्हिच एक्ट कैन बी कॉल्ड अनटचेबिलिटी का एक्ट. that yes, you are practicing untouchability by this particular act, we can say that. We will also talk about Civil Rights Protection Act. एक act है which prohibits the practice of untouchability and which have the penal provision of untouchability. We will also be talking about Article 18 and case of Mohan Babu and Brahmanandam. Mohan Babu is also a South Indian actor, as well as Brahmanandam is also a South Indian actor. So we will be discussing about these things today. It would not be more than half an hour session. So let's start. Article 17, first of all. Article 17 says abolition of untouchability. अब मैंने आपको हर बार बताया that it has no exception. There is no exception or restriction on this particular fundamental rights. It is absolute. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. So in any form, in any case, in any situation, no if, no but, untouchability is prohibited. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. So if you do anything which can comprise of untouchability, any act which has a feature of untouchability, then it can also be called practicing of untouchability and you will be liable for punishment accordingly. तो बेसिकली आर्टिकल 17 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को. Now, what is untouchability? Untouchability किसको कहेंगे? What can be said as untouchability? So, untouchability का एक बहुत wide scope है. There are a lot of things which come under the purview of untouchability. So, even preventing someone, I have made certain examples. This is not exhaustive list. There are other acts also, but I have dealt with 4 or 5 kind of things. So, if you prevent someone from entering a place of worship, then it will be called that you are practicing untouchability. If you will justify, even if you are justifying anywhere untouchability, like on traditional ground, on religious ground, or any on philosophical ground or any other ground, if you say that yes, untouchability is very valid, it has a particular reasoning to it, if you will justify it at any place, then also it will be said that you are practicing untouchability. Denying access to hotel, shop, etc. These are also part of untouchability. If you will insult a person belonging to scheduled caste on the ground of untouchability, this will also be called practicing of untouchability. Refusing to sell goods or render, if you are suppose if you are a seller and you refuse to sell your good to a particular person because it belongs to a particular community, so that will also be come under the purview of untouchability. It will be said that you are practicing untouchability. Even untouchability is like people say that our shadow should not go. His shadow should not come on our body. Of a person belonging to some other communities, shadow should not come upon the body of someone who thinks that he belongs to a so-called upper caste. So these kind of things, if you practice these things, it will be called that you are practicing untouchability and it is completely forbidden by the Constitution of India. Supposedly, I saw this in a movie. There was a guy there was an upper caste guy who comes out his house and he sees that there is a man standing in front of house. Due to any reason, he belonged to a lower caste. So he returned to the house and he took a bath. Again, he came out and he saw that that guy is again standing. और उसने फिर देखा उसको, फिर वो बात लेने चला गया. तीसरी बार वो बाहर निकला, उसको लगा कि अब तक तो वो जा चुका होगा. तीसरी बार बाहर निकला तो देखा फिर से वो गाय सामने खड़ा था, वो फिर नहाने चला गया. He again took the bath. So that guy understood that yes, he is practicing untouchability because every time he sees me, he goes and take a bath. तो अब जरूरी नहीं कि हर बार आप पुलिस के लिए जाए, के पास ही जाएं और आप कंप्लेन ही करें. So he decided that he will stay in front of his house. तो जब भी वो बाहर आता था, वो उसको दिख जाता था और वो फिर नहाने चला जाता था. So जुकाम से आदमी मर जाए. So untouchability
कितने तरीके का हो सकता है ये मैं आपको उसकी स्कोप बता रहा हूँ कि इवन इफ आप किसी को देख के बार बार फिर कह रहे हो कि नाउ आई विल टेक बात बिकॉज आई हैव सीन दिस पर्सन, और इवन इफ यू आर ईटिंग एंड इफ समवन केम देन यू मेड सम सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिम, आप थोड़ा दूर जाके बैठ गए कि नहीं नहीं दिस ही बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट सो आई कांट सिट बिसाइड हिम। तो इतने नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस हैं ऐसा, आप उसको एक लेदर जैकेट में बंद नहीं कर सकते कि इतनी चीजों को ही अनटचेबिलिटी कहते हैं। टाइम एंड अगेन उसको कोड बता देती है दिस इज ऑल्सो अनटचेबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चीज टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अब एक चीज मैं बताऊं, अनटचेबिलिटी को कोर्ट ने कहा, कोर्ट सेड दैट अनटचेबिलिटी इज फॉलोड इन हिंदू रिलीजन ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ यू से दैट दिस गाय इज अनटचेबल। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एक अपर कास्ट का गाय है, सपोज करिए there is a Brahmin for an example, and he goes to court and he says, or a police station, and he says that there is co-Brahmin who is practicing untouchability with me, so it will not form any offense क्योंकि untouchability birth के basis पे होता है। People say that if someone is belonging to particular caste, so or even if he is casteless, so people say that yes he's untouchable. But now if tomorrow someone from a Brahmin community will say that there is a girl, I want to touch her but she is not letting me touch her, so she is practicing untouchability. No, these kind of things will not constitute untouchability because first of all it has been laid by Supreme Court that it is generally followed in Hindu religion on the basis of birth. तो ये चीजों को भी फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी सर उठा के नहीं कह सकता कि सर हमारे साथ अनटचेबिलिटी फॉलो हो रही है। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। अब देखिए, ये तो बात होगी कि किन चीजों को हम अनटचेबिलिटी कहेंगे। नाउ पनिशमेंट की बात करते हैं। सो देयर आर सर्टेन पीनल प्रोविजंस, सर्टेन एक्ट्स व्हिच प्रोहिबिट्स the practice of untouchability. In 1955, there was an act called the Untouchability Offences Act 1955. So this act dealt with the provisions. Shrijita, if you want to ask something, you can type in the chat box. So earlier it was said that untouchability was an offense. So for that particular offense, there was the Untouchability Offences Act 1955, which dealt with the punishment for this act. In 1976, it was renamed as Protection of Civil Rights 1955. So act was same. It was not a new act. People get confused that Protection of Civil Rights is a new act. No, it is the same act as the Untouchability of Offences Act, but it has been renamed and certain provisions have been added in that. So the अगर आज की डेट में आपसे पूछें, this can be asked that which particular act or which particular law deals with the penal provision or the punishment for the untouchability. So you will say that Protection of Civil Rights 1955. This act have enlarged the scope and make stringent penal provision against the untouchability. इसकी जरूरत क्यों पड़ी कोई बता सकता है मुझे? But in 1955 people thought untouchability just means that not touching someone else. But later on it was observed that untouchability are in various forms. जैसे कि मैंने आपसे बात करा, किसी को आप शॉप पे सामान नहीं खरीद के दे रहे हो, मतलब if you are a seller then you are not ready to render him service. So these kind of things will also constitute अनटचेबिलिटी। तो टाइम एंड अगेन जब लोगों को ये पता चला, गवर्नमेंट ने रियलाइज करा दैट अनटचेबिलिटी इज नॉट अ सिंगल डायमेंशनल प्रैक्टिस, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रैक्टिस। बहुत तरीके से लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं एंड इट इज बैंड फॉर इंडिविजुअल ऑल्सो। अगर आप वापस में अगर पीछे जाऊं तो इसमें ये नहीं लिखा है, स्टेट वर्ड नहीं लिखा है। आप जनरली आर्टिकल पढ़ते हैं तो स्टेट लिखा होता है, जैसे 14 स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। 16 में भी कहता है स्टेट शुड प्रोवाइड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, स्टेट की बात होती है, यहाँ स्टेट वर्ड यूज नहीं है। So it is not only for government, it is also for private individual. It's not just the state who has this obligation that you cannot practice untouchability, but it are individuals also that they are also required that you cannot practice untouchability in any form. It is absolutely forbidden and banned. I hope this is clear. इसमें कुछ खास नहीं था। और लास्टली एक ये पॉइंट है, मैं आपको क्योंकि कम था इसमें मैटर, तो मैंने जनरली कॉलेजेस में तो ये आर्टिकल पढ़ाते भी नहीं है, एक लाइन बता के आगे चले जाते हैं, बट स्टिल इवन अनटचेबिलिटी का क्या पनिशमेंट होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिविल राइट्स एक्ट, इट इज इफ समवन इज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, ही मे बी इम्प्रिजन्ड फॉर a tenure of 6 months, or there can be a fine imposed on him of rupees 500, or both of them. So these are the penal punishment that can be imposed on someone who is practicing untouchability. Now moving further, let's talk about Article 18. So what does Article 18 says? Article 18 थोड़ा सा
17 तो बहुत इजी था, आर्टिकल 18 थोड़ा सा सोचने वाली बात है, प्लीज गौर करिएगा. So there are 4 clauses in Article 18. We will be going one by one. And please listen to me. Once I am done with Article 18, then ask questions. बीच में ही वो क्वेश्चन करना, सर डॉक्टर, मिस्टर, एडवोकेट ये सब लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते. Please don't ask question in the middle of this article. I will try to cover everything. And when I am done with Article 18, then you are free to ask me questions. Okay. So the very first clause says that no title not being a military or academic distinction. पहली 2 वर्ड के बाद ही लिख दिया. It has been very well mentioned after 2 words that not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. Means that state cannot confer a title. Title word use है, लेकिन लोग title और award को गलत तरीके से मतलब ले लेते हैं. Award is a different thing and title is a different thing. जैसे अगर सर किसी को नाइटहुड देते हैं, कहते हैं यू विल बी कॉल्ड सर. जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट सर का टाइटल देती थी लोगों को. सर सी राजगोपालाचारी आपने नाम सुना होगा, तो सर का टाइटल दिया जाता था. तो दिस इज कॉल्ड टाइटल. लेकिन अगर मैं अवार्ड दे दूं किसी को, सपोज आई गिव हिम यू अवार्ड कॉल्ड भारत रत्न, सो दिस विल बी नॉट कॉल्ड अ टाइटल, इट इज एन अवार्ड. अवार्ड एंड टाइटल 2 अलग अलग चीजें होती है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा. टाइटल जो होता है वो नेम के आगे और पीछे लग सकता है, और एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स, नाम से पहले या नाम के बाद में. और अवार्ड जो होता है वो तो आप उसको नाम के आगे और पीछे नहीं लगाते. सो नो टाइटल मतलब स्टेट कैन नॉट कन्फर अ टाइटल अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन. मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के टाइटल लगा सकते हैं, जैसे कि मेजर, मेजर जनरल. एकेडमिक डिस्टिंक्शन डॉक्टर अखिलेश प्रताप, इस तरीके का नाम. सो द स्टेट कैन कन्फर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस. दे कैन गिव यू मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल. एडवोकेट लोग लिखते हैं एडीवी, दिस इज ऑल्सो टाइटल ना. आप अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते. आर्टिकल 18 सिंपली ये कहता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है. क्या एक्सेप्शन है? दैट स्टेट कैन गिव यू द टाइटल लाइक मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन आपको दे सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पहला पॉइंट था जो कि कंपैरेटिवली इजी था, इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आपको स्टेट दे सकता है. अब एक बार गौर करिए, बहुत तरीके के लोग अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाते हैं, ई आर लगाते हैं, इंजीनियर्स, डी आर डॉक्टर्स, सो दे यूज सर्टेन टाइटल्स. व्हाई इज दिस आर्टिकल मेंशन, मतलब इसकी क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों एबॉलिशन ऑफ टाइटल किया क्यों गया, क्या रीजनिंग है? जैसे वी नो आर्टिकल 17 क्यों किया गया, भैया untouchability should not be practiced because it discriminate against people. So why does abolition of title का concept क्यों लाया गया? क्या आप कोई मुझे chat पे बता सकता है? Even they can raise their hand, I will unmute them. I want to listen that what was the need to. अच्छा, Himanshu want to say something. Himanshu, I would like to unmute you if you can. Yes, Himanshu, please. What do you think was the reason of bringing Article 18? टाइटल का कोई मिसयूज ना करे कि मतलब कोई डॉक्टर है ही नहीं और वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है. तो पर एकेडमिक डिस्टिंक्शन टाइटल तो मिल ही रहा है सर, डॉक्टर तो यूज कर ही सकते हैं. यूज कर सकते हैं लेकिन जब तक वो बना ही नहीं डॉक्टर. अब वो बना ही नहीं डॉक्टर तो सर अलग सिचुएशन है, वो तो स्टेट यहाँ पे मना कर रही है. मैं ये कह रहा हूँ स्टेट मना क्यों कर रही है? फिर तो वो सबको ही मना कर दे. ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं. फिर वो क्रिकेटर बनाना छोड़ दें कि कोई खुद को मिसरिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं भी क्रिकेटर हूँ. तो थोड़ा और सोचिए हिमांशु जी, तब तक मैं औरों के पास जाता हूँ. मैं सिद्धार्थ को अनम्यूट करता हूँ. सिद्धार्थ, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन ऑफ इंसर्टिंग आर्टिकल 18? So first of all, it was to get rid of foreign ideologies. We were a victim of English rules. So get rid of their ideology or their rule, their system. We did this, and second of all, to of course maintain equality among the people and apply the rules and laws equally among them. But the main reason was to get rid of their system, as we were the victim of them. Okay, Siddharth, thank you. Now I will unmute Prerna because Prerna had stated very well the answer, and even a girl also has stated a very good answer. मुझे ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए. She is Ria. Ria, I am unmuting you. Ria also gave a very good answer. I want everyone to listen to her. That what does she says? Yes, Ria. So the reason behind this is that everyone would be treated equal and no partiality. Okay, very good, Ria. Shivanshi, I am unmuting you also, so that you can also take the reasoning जो आप बता रही हैं chat पे. That what do you think? Why do you think Article 18 has been given in the Constitution? Sir, I really feel that earlier there were princely states, like people have title like kings, queens, and prince.
princesses. So they were, so that's why to abolish it, so that everybody is equally treated. Yeah, thank you Shivanshi, you are right. So most of them are right. There were particularly 2 reasons, but जो अभी आप लोग रीजन दे रहे हैं, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत लोग इंडिपेंडेंस से पहले महाराजा और इनका टाइटल यूज करते थे. सो दे आर राइट. प्रभात, यू आर आल्सो राइट कि दे यूज्ड. अब इंडिपेंडेंस से पहले था, ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइटल देती थी, बहुत तरीके के टाइटल, बहादुर, राज बहादुर, राजा, महाराजा, महाराजा धिराज. अगर आप सिंधिया के फादर का नाम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा नाम है उनके फादर का, ज्योतिरादित्य सिंधिया के फादर का नाम. माधवराव सिंधिया का पूरा नाम है महाराजा धिराज करके MM. इट्स अ वेरी लॉन्ग नेम, आई आल्सो डोंट रिमेंबर. सो एक रीजन जो लोगों ने, आप सबने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि सर इसलिए कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश लोगों ने कुछ कन्फर किया था टाइटल, उनको हटाने के लिए, एबॉलिश करने के लिए. बहुत सही. लेकिन इससे भी एक इसका एक कन्फर्ड मीनिंग है, जो मीनिंग का आंसर मैं सुनना चाह रहा था कि बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है, इक्वालिटी. इक्वालिटी इन एवरी फॉर्म शुड बी गिवन. सो दिस आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि स्टेटस में इक्वालिटी होनी चाहिए. अब 2 लोग हैं, 2 पर्टिकुलर सिटीजन है, एक को स्टेट ने टाइटल दे दिया कि सर आज से मैं आपको महाराजा बुलाऊंगा और आपको कुछ नहीं बुलाऊंगा, यू विल बी अ कॉमन मैन. तो वोंट इट बी डिस्क्रिमिनेशन? एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन चलता है कि ठीक है, एकेडमिकली किसी ने मेहनत करी है तो उसको आपने डिस्टिंक्शन दिया, मिलिट्री में कोई अच्छे पोस्ट पर डिस्टिंक्शन दिया. बट नॉर्मली अगर आप हेरिडिटरी दे दें, कैसे भी दे दें, आप अपने आर्बिट्ररी किसी को कोई टाइटल दे दें, तो वोंट इट बी डिस्क्रिमिनेशन? एक बंदे को आप इज्जत दे रहे हो और एक को नहीं दे रहे हो, अल्टीमेटली उसको बुरा लगेगा ही. इट वाज लाइक अ स्टोरी जो मैं हर बार कहता हूँ कि अकबर ने बिरबल से कहा कि एक लाइन खींच दी अकबर ने, और बिरबल से कहा इस लाइन को छोटी कर दो, बिना मिटाए हुए, बिना काटे हुए. तो बिरबल ने उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दी. अब कहा देखिए ये लाइन अपने आप छोटी हो गई. सिमिलर टू दैट, अगर कोई 2 व्यक्ति हैं, अगर हम एक को अच्छे तरीके से, एक को ज्यादा ट्रीटमेंट दें तो और दूसरे को उतनी ट्रीटमेंट ना दें, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अदर. सो इसीलिए आर्टिकल 18 का अगर रीजनिंग की हम बात करें तो रीजन ये था कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की जो कॉन्सेप्ट है, इवन प्रियम्बल में भी लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के बारे में. अगर आप प्रियम्बल में जाएंगे तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 18 ने स्टेट पे ड्यूटी दी है, स्टेट पे एक ऑब्लिगेशन रखा है कि सर स्टेट कैन नॉट गिव टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक एंड military distinctions. Okay. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. अब इंडियन सिटीजन कोई बाहर के स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं. अच्छा, अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में देयर इज अ लाइन दैट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज वेरी वेल मेंशन्ड इन प्रियम्बल ओनली. तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की जो बात प्रियम्बल में की गई है, उसी के लिए एक प्रोविजन है ये आर्टिकल 18. सो नाउ क्लॉज 2 पे आते हैं. नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. कोई भी सिटीजन इंडिया का कोई फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता. सर यहाँ टाइटल मैंने अंडरलाइन किया है, दिस इज अ वर्ड टाइटल, नॉट अवार्ड. फॉर एग्जांपल, रविश कुमार वेरी रिसेंटली गॉट रेमन मैग्सेसे अवार्ड. सो दैट वाज अ अवार्ड, दैट वाज नॉट अ टाइटल. तो इंडियन सिटीजन फॉरेन का टाइटल नहीं ले सकते. अभी आपको पता होगा मोदी जी को बहुत सारे फॉरेन टाइटल्स के लिए लोग कहते हैं कि दिस इज अ फॉरेन टाइटल. अफगानिस्तान ने उनको एक बहुत अच्छा शेर अफगान टाइप का एक अवार्ड दिया था. सो दैट वाज अवार्ड, दैट वाज नॉट अ टाइटल. So you must know the distinction between title and award. Title is something which we use as prefix or suffix of your name. अब जैसे शिवांशी नाम है, तो अब शिवांशी अपने नाम के आगे लगाने लग जाए कोई टाइटल, महारानी शिवांशी, इस तरीके से. So this will constitute a title. But अगर इनको कोई प्राइज मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न मिल जाए कल को, तो अगर आप लिखते हैं शिवांशी भारत रत्न होल्डर, so there is no wrong in this, क्योंकि आप एक अवार्ड को यूज कर रहे हैं, आप एक टाइटल यूज नहीं कर रहे हैं. तो टाइटल वो होता है जो आप अपने नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स आगे या पीछे लगा देते हैं, ऑफिशियली यूज करते हैं, दैट इज बैड. क्योंकि अगर आप नाम अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो एक तरीके से अपने नाम को, तो दूसरे लोगों को इंफीरियरिटी महसूस हो सकती है. तो अब इसने क्यों लिखा कि फॉरेन से नहीं लेंगे? इसलिए लिखा गया क्लॉज 2 में क्योंकि क्लॉज 1 में स्टेट ने तो ऑलरेडी मना कर दिया, मतलब इंडिया से तो आपको मिलेगा नहीं अवार्ड, मतलब टाइटल, सॉरी, इंडिया से तो टाइटल मिलेगा नहीं, और 2 में लिख दिया आपको फॉरेन से भी नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति ना इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया कहीं से भी आप टाइटल ले ही नहीं सकते अपना नाम. तो आप खुद को सुपीरियर, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरली आप खुद को सुपीरियर बताएं जिससे और लोग खुद को इंफीरियर फील करें. लेट्स कम टू क्लॉज 3. नो पर्सन. देखिए मैंने जो चीजें अंडरलाइन इसलिए कर रख देता हूँ चीजें. सर सम वुमेन पुट आफ्टर देयर नेम सुनीता देवी, इज इट रॉन्ग? सर देवी नाम तो मैं भी अपना कुछ रख सकता हूँ, बट एक टाइटल विल इट कॉन्स्टिट्यूट अ टाइटल? इज देवी अ टाइटल? टाइटल क्या होता है? राजा, महाराजा, इस तरीके का.
देवी गॉडेस, देवी सो गॉडेस का मतलब हुआ, अब मेरा नाम है त्रिविक्रम. अब त्रिविक्रम इज वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु. लॉर्ड विष्णु हैज 1001 नेम. अब कल को कोई मुझे क्वेश्चन कर दे आप टाइटल यूज कर रहे हैं, ये टाइटल नहीं है, दिस इज माय नेम, दिस इज हर ऑफिशियल नेम ना. इफ सुनीता देवी इज समवन ऑफिशियल नेम. अब मेरे पे धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इन सब क्वेश्चन का आंसर करूंगा. मैंने कहा था वेट करिए बस, आर्टिकल 18 में क्वेश्चन आते हैं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आते हैं. आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस बट जस्ट वेट फॉर मी टू फिनिश दिस प्रोविजंस. आर्टिकल 3 क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन, अब देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन किया, दो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अब क्या होता है, कुछ लोग इंडियन सिटीजन नहीं होते फिर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, कुछ जॉब गवर्नमेंट दे देती है. गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है आपके पास अंडर द स्टेट, आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो इंडियन सिटीजन की बात हुई क्लॉज 2 में. अब क्लॉज 3 उससे डील करता है जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन हु वर्क फॉर इंडियन गवर्नमेंट. उनसे कह दिया कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट के लिए काम कर रहे हो, then also you cannot accept anything, any title from foreign state without the consent of the president. If the person consents तो आप ले सकते हैं. मान लीजिए कोई इंग्लैंड का कोई पर्सन है, वो इंडिया में रिसर्च करना है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हायर किया है फॉर मेडिकल रिसर्च पर्पस फॉर दिस कोरोना टाइम फॉर एग्जाम्पल. सो if when he is working under the state, he cannot take any title from any other foreign country. But suppose he has done something very remarkable and the English government want to reward him, so he can take the consent from the president कि सर मेरे को ये टाइटल मिल रहा है, क्या मैं ले सकता हूँ. If president agrees, if president gives him the consent कि हाँ भैया आप ये टाइटल ले सकते हो, तो वो व्यक्ति वो टाइटल ले सकता है. तो आप देख सकते हैं कितने चेक एंड बैलेंस लगाए गए हैं कि कोई बंदा बिना मतलब का टाइटल यूज ना करे. अब इसका क्या लोगों ने रूल निकाला, अपना नाम ही रख लिया. अभी तो एक टाइटल है, लोगों ने नाम ही रखना शुरू कर दिया. अभय प्रताप सिंह, बहादुर, शेर बहादुर सिंह, इस तरीके के लोग अपना नाम ही रखना शुरू कर दिए कि टाइटल मना है ना, नाम रखना थोड़ा ना मना है, तो मैं अपना ऑफिशियल नेम ही ऐसा कुछ रख देता हूँ. तो इस तरीके की चीजें होने लग गई. तो उसके बाद क्या हुआ, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of the president accept any present involvement office or any kind of thing from any foreign state. अब लास्ट फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय, सिंपली हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य की गवर्नमेंट नहीं, स्टेट इन द सेंस द होल गवर्नमेंट, इधर बी इट अ यूनियन और यूनियन टेरिटरी और अ स्टेट. सो व्हेन आई यूज द वर्ड स्टेट, दिस मीन स्टेट अंडर आर्टिकल 12. सो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, देन ऑल्सो इफ ही नीड टू गेट एनी काइंड ऑफ प्रेजेंट, इमोलमेंट, कोई प्रेजेंट या गिफ्ट, इस तरीके की चीजें अगर उसको कोई फॉरेन स्टेट देता है, तो वो लेने से पहले भी उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा. ये किसके लिए है, दिस इज फॉर पब्लिक एम्प्लॉय, ये पब्लिक एम्प्लॉय के लिए है फोर्थ क्लॉज. ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल व्यक्ति, इफ देयर इज अ प्राइवेट सिटीजन हु इज अ बिजनेसमैन, सो ही कैन टेक प्रेजेंट फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. बट इट इज इफ देयर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन ही मस्ट टेक कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर गेटिंग अ प्रेजेंट. ऐसा क्यों किया गया है, हर चीज का रीजनिंग है और मैं चाहता हूँ हर चीज का रीजनिंग समझें. अब फोर्थ में ये है कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू लीक सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू अ फॉरेन स्टेट. वो गवर्नमेंट की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉरेन स्टेट को दे सकता है, एंड इन दैट रिवॉर्ड द फॉरेन स्टेट इज गिविंग अ टाइटल टू हिम. सो दैट इज व्हाई इसको चेक बनाने के लिए आर्टिकल 18(4) में लिखा है कि कोई फॉरेन, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फॉरेन से अगर कोई टाइटल लेता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट से क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा. लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए ऐसा नहीं है. तो ये चार हमने उन्हें बताया. पहला क्या था, एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन आपको मिल सकते हैं, बाकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा. टाइटल आप बाहर का भी यूज नहीं कर सकते, बाहर का टाइटल नहीं यूज कर सकते. फॉरेन का कोई फॉरेन कंट्री ने आपको टाइटल दिया, यू कैन नॉट यूज इट इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू कैन टेक इट. तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई इंग्लैंड में रहता हुआ आदमी बेन स्टोक्स को कोई टाइटल मिल जाए तो क्या दिक्कत है हमें. लेकिन अगर आप स्टेट के एम्प्लॉय हैं, तब आपको लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा. और फोर्थ का कहता है, अगर आप फिर से स्टेट के एम्प्लॉय हैं और इंडियन सिटीजन हैं भी या नहीं भी, इससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप प्रेसिडेंट कोई प्रेजेंट लेना चाह रहे हैं, कोई भी प्रेजेंट लेना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, तो भी क्या करना पड़ेगा आपको कंसेंट लेना पड़ेगा. ओके, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन. दृष्टि सिद्धार्थ आपके क्वेश्चन आए, आई विल आंसर. वेट, मेरे को थोड़ा सा आगे चलने दीजिए. लेट्स कम टू इम्पैक्ट. क्या असर पड़ा, हेरिडिटी टाइटल्स बैन हो गए. दीवान बहादुर, राज बहादुर, राजा, महाराजा, राय साहब, these kind of title were banned. Now you don't see people using this type of title. सैफ अली खान को छोटे नवाब भी बुलाते हैं लोग, because he is the son of नवाब पटौदी of भोपाल. So he is often called छोटे नवाब. अगर आप बॉलीवुड का वो एक पता नहीं क्या आता है, वो
सास बहू और साजिश टाइप का कुछ, शायद में भी यही नाम होता है. सो दिस काइंड ऑफ सीरियल न्यूज चैनल्स वो ऐसे बुलाते हैं, कुछ नाम देते हैं और भी ना एक्टर्स को, जैसे सल्लू मियां कहते हैं. तो दे ऑफन से दैट छोटे नवाब को देखा गया ये करते हुए वो करते हुए. सो छोटे नवाब इज अ टाइटल गिवन टू सैफ अली खान, बट ही कैन नॉट यूज दिस. सैफ अली खान अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते छोटे नवाब सैफ अली खान. People may call them out of love and affection, that's a different part, but he cannot officially use this title. मैंने इसके बाद NA लिखा है मतलब not applicable, ऐसा होता नहीं है. मतलब इसका नाम के आगे NA मत लिखा है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा. So I have written that छोटे नवाब सैफ अली खान वो अपने आप को लिख लेते हैं अगर आर्टिकल 18 का प्रोविजन नहीं होता. But due to the article 18 you cannot have a title, you cannot, in order to have the concept of principle of equal status. So that is why Saif Ali Khan is also only called Saif Ali Khan, not Chote Nawab. Okay. Lastly, I will be talking about a case क्योंकि बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे लिख देते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर. You have these times kind of thing कि लोग अपने नाम के आगे पद्म भूषण अपने नाम के आगे लगा लेते हैं. तो there was a case called बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 18 में एक ही इंपॉर्टेंट केस है और वो है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मे बी इट कैन बी आस्क्ड एनी टाइम. इस केस में बात की गई थी वैलिडिटी की, जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं उनकी वैलिडिटी की. पद्मश्री की, पद्म भूषण की, पद्म रत्न, भारत रत्न की, इन सब चीजों की बात की गई थी. तो कोर्ट ने कहा कि दीज आर नॉट टाइटल, दीज आर अवार्ड. तो ये बैंड नहीं है क्योंकि आपको पता है टाइटल्स आर प्रोहिबिटेड बट अवार्ड्स आर नॉट प्रोहिबिटेड. सो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दीज आर नॉट टाइटल अंडर आर्टिकल 18, दीज आर अवार्ड. द सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड कि अगर आप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बनाना चाहते हो, this does not mean that you should not give the mandate to the merit. मेरिट को रिकॉग्नाइज करने में क्या बुराई है? If there is a merit then you must recognize it. तो इसीलिए उन्होंने कहा एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल तो आप दे ही सकते हो और अवार्ड आप दे सकते. दिस इज अ काइंड ऑफ अवार्ड, दिस इज नॉट अ टाइटल. आप अवार्ड दीजिए, किसी को भारत रत्न दीजिए, आप किसी को पद्म भूषण पद्म विभूषण दीजिए. इफ समवन हैज डन दिस काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन, अगर कोई इतना रिकॉग्नाइज आदमी है तो उनको आप इस तरीके के अवार्ड्स दे सकते हैं. टाइटल नहीं होता, ये अवार्ड होता है. किस केस में कहा गया? इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट भारत रत्न एंड ऑल दिस नेशनल अवार्ड डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ टाइटल. बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. वन मोर थिंग इसी लेकिन आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कह दी कि बट इट शुड बी कंसिडर्ड, जो भी अवार्डी हैं वो इसको अपने नाम के में टाइटल की तरह यूज ना करें. आपको अवार्ड दिया जा रहा है, भारत रत्न इज अवार्ड गिवन टू यू. It is not a title given to you, so you cannot use it as Bharat Ratna Sachin Tendulkar. You can't use like this. You can use that I am Sachin Tendulkar, who is an awardee of Bharat Ratna. So this was said by the court in that particular case, and the court said that if in any case there is an awardee who is using his title, his award as a title, who is using his award as a prefix or suffix in his name, then his award should be forfeited. It should be taken. ये बालाजी राघवन में कहा गया. लास्टली क्या हुआ, जो मैंने तस्वीर दिखाई थी बहुत सेलिब्रेटेड एक्टर ब्रह्मानंदम की. सो व्हाट हैपेंड, ब्रह्मानंदम एंड मोहन बाबू रिसीव्ड पद्मश्री. व्हाट हैपेंड, देयर वाज दिस गाय बीजेपी लीडर एन इंद्रसेन रेड्डी. ही फाइल्ड अ पिटिशन इन द कोर्ट, इन द हाई कोर्ट ऑफ आंध्रा, एंड ही सेड दैट सर these two gentlemen are using पद्मश्री as prefix. मतलब उन्होंने अपने नाम के घर के बाहर लगा दिया था पद्मश्री ब्रह्मानंदम, डी ब्रह्मानंदम पूरा नाम उनका, पद्मश्री डी ब्रह्मानंदम. सो ही यूज्ड लाइक दिस, इस तरीके से अपना नाम, वो अपने नाम के आगे मोहन बाबू थे, इन्होंने एक मूवी रिलीज की उसमें अपना नाम लिख दिया पद्मश्री मोहन बाबू. So this guy, Mr. N. Indrasen Reddy, filed this kind of petition that these guys are using award as a title. They are using this award as a prefix to their name. So there was a bench calling of Chief Justice Kalyan Jyot Sen Gupta and Justice P. Sanjay Kumar. They decided a matter and they said that it is not allowed. You cannot use awards as a title, as a prefix, as it has been banned under Balaji Raghavan versus Union of India. That is why the court said that take away their award, forfeit their award. And later on, the court observed that both of the guys humbly, gracefully submitted their awards. So उनका award वापस surrender भी करवा लिया गया क्योंकि उन्होंने इस तरीके की चीज यूज करी. So I hope कि आपको इंस्टेंस समझ में आए होंगे. Now I am open to questions. अब मैं शुरू से क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर से शुरू करते हैं. देवी वाला आंसर कर दिया मैंने अरु आपको. अदिति का क्वेश्चन है, सर मिस्टर एपीजे कलाम इज आल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया.
कैन बी कंसिडर्ड एज टाइटल और एन अवार्ड? इट इज नीदर अ टाइटल नॉर एन अवार्ड. टाइटल तो तब होता अगर इनका नाम हो जाता मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम. इफ ही यूज्ड टू राइट लाइक दिस, अगर कहीं उनको नाम लिखना होता ऑफिशियली, तो अगर वो अपना नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देते तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज टाइटल. अवार्ड तो है ही नहीं. क्या कोई अवार्ड है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का जो हर साल दिया जाता है और कलाम जी को दिया गया? अवार्ड भी नहीं है. तो अदिति, इट इज नीदर एन अवार्ड, इट इज नीदर अ टाइटल, इट इज अ डिस्टिंक्शन. मतलब आप किसी को कुछ कह सकते हैं ना. आप सचिन तेंदुलकर कहते हैं लॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट. दिस डजंट मीन दैट ही रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ अवार्ड फॉर बीइंग द गॉड ऑफ क्रिकेट. वो तो लोग प्यार से बुलाते हैं. धोनी को माही बुलाते हैं, दैट्स अ छोटे नवाब बुलाते हैं. तो ये तो एक नाम हो गया ना, एक नाम देने एक याद करने का तरीका है. इट इज नॉट नीदर अ टाइटल नॉर अवार्ड. टाइटल तब होता अगर ऑफिशियली अपने नाम के आगे या नाम के पीछे एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करते. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. सिद्धार्थ का क्वेश्चन है, सर इफ वन इज लिविंग अब्रॉड बट हैव इंडियन सिटीजनशिप गेट्स अ टाइटल. अब आप सिद्धार्थ, आप इसको फिर से वापस आइए. इस पे वापस मैं इस पे आता हूँ. इसमें क्या लिखा है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया. इसमें ये तो नहीं लिखा है कि सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया और नॉट. अगर आप इंडियन सिटीजन है तो चाहे इंडिया में रहें चाहे मार्स पे रहें, यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. उसके बाद दृष्टि का क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ अ पर्सन is a citizen of any other country and gets citizenship of India after fulfilling all the requirements, but he has the title, then he has to, obviously once you become a citizen of India you have to remove it because it is very very compulsory. क्योंकि अगर आप सिटीजन हैं तो आप यूज कर नहीं सकते, आप लगा ही नहीं सकते. He cannot continue with that because every law is same. If you are a citizen, once he became a citizen, the laws are equal with those citizens who are from the very birth. They are called the citizen of India, and those who have just now acquired the citizenship of India. Now there is a question from Aru. Non-citizens can't accept title if it was specified in clause 3 and citizens can't take it. It was mentioned in clause 2. Then why need of clause 4? Clause 4 का need इसलिए किया गया क्योंकि clause 4 में अरु एक बात बताइए, clause 4 में क्या लिखा है? टाइटल वर्ड लिखा है क्या कहीं पे? नहीं लिखा है. क्लॉज 2 में क्या लिखा है? टाइटल लिखा है. क्लॉज 4 में लिखा है इमोलमेंट्स, प्रेजेंट, गिफ्ट्स की बात हुई है कि अगर कोई स्टेट का एम्प्लॉय है तो वो फॉरेन से कोई गिफ्ट वगैरह ना ले ले, इमोलमेंट्स ना ले ले, क्योंकि ही में प्रूव टू बी डेंजरस फॉर आवर स्टेट. मतलब हो सकता है कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, कि गवर्नमेंट की डेटा लीक करता हो, फॉरेन स्टेट को हेल्प करता हो, तो फॉरेन स्टेट बदले में कुछ तो देगी ना, गिफ्ट देगी, प्राइज देगी, मनी देगी, कुछ तो देगी. तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए है आर्टिकल 4 कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल टेक दिस. तो इसलिए फोर्थ का लाना भी जरूरी था. 3 और 2 में सिटीजन नॉन सिटीजन की बात हुई है, 4 में उनकी बात हुई है. अब जैसे इसमें प्राइवेट पर्सन है, कोई बंदा बिजनेसमैन करता है तो ही कैन टेक गिफ्ट ना, गिफ्ट तो कहीं बैन नहीं है. लेकिन फोर्थ में गिफ्ट बैन कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन, इंडियन एम्प्लॉय है इंडियन गवर्नमेंट के. दीक्षा का क्वेश्चन है, some doctors use gold medalist as a prefix or suffix, that is wrong now. And like you said, merit को जाना चाहिए, तो ये gold medalist वाला tag तो is right or wrong? No, academic distinction is very much allowed. If you, अब ये देखिए, आप अगर आप कहीं नाम लिखते हैं ऑफिशियली तो क्या लिखते हैं? गोल्ड मेडलिस्ट मिसेस दीक्षा पनगोटी, ये तो आप लिखेंगे नहीं. आप तो अपना नाम लिखेंगे, डॉक्टर लिख देती हैं ऑफिशियली, बट ऑफिशियली क्या गोल्ड मेडलिस्ट लोग वर्ड यूज करते हैं? और इवन गोल्ड मेडलिस्ट और वगैरह को चैलेंज नहीं किया गया क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ एकेडमिक डिस्टिंक्शन. ये आपको एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, कहीं किसी रूप से क्या ये नॉन एकेडमिक डिस्टिंक्शन लग रहा है आपको? बट स्टिल गोल्ड मेडलिस्ट इज नॉट यूज्ड. लोग इसको नाम में, ऑफिशियली नेम में एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स यूज नहीं करते हैं. वो एज अ, अब जब वो लिखते हैं दैट हैव डन एमडी किया है ब्रैकेट में गोल्ड मेडलिस्ट, हैव डन एलएलएम ब्रैकेट में गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो अपने कोर्स के बाद ये वर्ड यूज करते हैं दैट गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट. नाम के बाद यूज नहीं करते हैं जनरली. फर्दर सर इन क्लॉज 2 वहां पे एक्सेप्ट करने की बात कही गई है, रिमूव करने की नहीं. एक्सेप्ट ना करने की बात करी गई है दृष्टि जी. नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट, नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसका अगर ये होता सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट, तब एक्सेप्ट करने की बात होती. आप लाइन पढ़िए, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल, मतलब कोई भी इंडिया सिटीजन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता. दिस इज द क्वेश्चन ना, दिस इज द प्रोविजन ना. वहां एक्सेप्ट ना करने की बात करी गई, एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. सो आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर. और कोई क्वेश्चन नहीं आए मेरे पास जो भी क्वेश्चन आए मैंने उनको आंसर कर दिए हैं. इफ देयर इज अनदर क्वेश्चन यू कैन टाइप इट, आई विल रिप्लाई टू इट. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट. कल हम आर्टिकल 19 का डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा.
So I'm going to end this session. Thank you, everyone.